Guys, we are at Shiolim right now, and before we start with anything, I want you all to meet this beautiful man that I'm here with. This is Emo, he's from Germany. Introduce yourself. Tell people about your fabulous self. My fabulous self. I'm Emo and I'm really crazy and I work here on this beautiful place. Look at the many people we rescue. It's such a happy place. We just gotten here. I'll tell you an incident happened to me. I'll tell about that later. This is too funny. But just like if you're an animal lover, the next 2-3 minutes of this video are especially for you. All the animals in this shelter are rescued animals, guys. They have dogs, goats, cows, and all of them are so happy in this shelter home. They are well taken care of and proper medical treatment is provided to cure them. The shelter is supported by donations and they also receive some funds from the government. If you would also like to support them by contributing any little amount that you can, I'll share more details in the description for you. The place has such a positive energy. You can also volunteer here next time you visit Goa. All guys are so happy and friendly. It's such a happy face. She's a diva, a little bit. Hello. Why are you all sitting together? Sitting together. How do you maintain this? It's very difficult. We just rely on donations. Look at this cow. He's relaxed, but he's happy. She's really good. And why not rescue? And the fur is so good. And she's not skinny. She's good. You wanna eat her? No. Got back from this very cool place, Amancio Classic, right? And we had this chicken kafrial. It was so good. It was really good. It was a bit spicy, like the aftertaste. It was, yeah. Yes. But it was good. We had like a good satisfying meal. It was. Now we're back at the Now shelter. We have big bellies, Yes. full bellies, Yes, like and this. have some drinks. We're back at the shelter to meet some new babies. And we have drums. We can play music with our bellies. Only if my hand was not broken, I could like. The music, it's not for free. If you want to hear my music, Call me. Give me the tips. गोवा में आके गाइस मुझे अपने शरीर के एक एक पुर्जे की वैल्यू पता चली है. मतलब एक एक आपके शरीर का हिस्सा आपको कितनी हेल्प करता है. बिफोर आई टेल यू व्हाट हैपेंड टू मी एंड हाउ आई गॉट लाइक ऑल दीज न्यू ब्रूजेस, लेट मी टेल यू आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द एनिमल शेल्टर आई वेंट टू एंड ओ माय गॉड इट वाज व्हाट अ प्लेस यार. आई हैव नेवर बीन टू एन एनिमल शेल्टर, स्पेशली वेयर ऑल द एनिमल्स आर रेस्क्यूड. ओके, these are all animals, like there were cows, there were goats, there were dogs, there were cats, and they were all rescued and they were happy animals. Like you could feel the energy there. They were like having really good time and the care the team was taking and everything. It was really good. I am definitely sure that I'm gonna go there again. And it was like such a lovely place. If you guys also coming to Goa and you wanna like visit the place or just like help them with volunteering or anything like that, then I'll definitely mention the details for you guys in the description. I'll say if you love animals, you're gonna like love that place. There are a lot of babies who are like really cute. Other than that, my day has been like really shitty. Like it started so good. I was feeling fantastic. पहले मुझे उठ के ऐसे लग रहा था ना इतने दिनों बाद मेरा बैक पेन ठीक हुआ है. I'm feeling wonderful. And then this happened. This shitty thing happened. And a lot of you must be thinking क्या हो गई वो. मैं कुछ स्कूटी वूटी से नहीं गिरी हूँ. मैं चलते चलते गिरी हूँ. मैं कहीं बाहर नहीं गिरी हूँ. मैं अपने हॉस्टल में गिरी हूँ जहाँ पे मैं सुबह शाम चलती रहती हूँ. And I felt like it's like one moment I'm walking and second moment Shamai like I think are you gonna fall? Are you gonna fall? And I fall. And I have like it's like there's a lot of things
something here. Actually मेरे हाथ पे कैसे लगे पता है? I tripped like this. I was gonna fall like this. तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ लगने से अच्छा, that was my instinct कि मैं अपना हाथ रख देती हूँ. तो उसके चक्कर में मुझे एक्चुअली यहाँ पे लगा, बहुत से मिट्टी एंड खड़ी थी. अभी मैं उधर से सीधा एनिमल शेल्टर चले गई. I didn't even do the cleaning part. Very stupid of me, I know. But I just got back to the dorm. अभी मैं I'm gonna take shower. I got like first aid things from the hostel guys. I'm gonna put a lot of like Savlon or Dettol or something. I'm gonna put Betadine and I'm gonna like let my hand rest. But I'm having like मतलब प्रॉब्लम तो किसमें हो रही है? ऐसा पूरा सीधा, पूरा फोल्ड एंड पूरा ऊपर. पहले मुझे डर लग रहा था कि मतलब कोई फ्रैक्चर ना हो जाए. बट पीपल आर लाइक आओ व्हेन यू हैव फ्रैक्चर यू कांट मूव इट दिस मच आल्सो. बट दिस हर्ट्स यार. क्या हो रहा है ये? इतने खतरनाक हादसों के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि मैं जब तक व्लॉग नहीं आता अपनी मम्मी को बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि मैं गिरी हूँ. शी इज गोइंग टू बी सो अपसेट. ओ गॉड, आई होप जब तक वीडियो आएगा ना तब तक थोड़ा तो ठीक हो जाएगा तो बता सकती हूँ. आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ यार. आई कांट स्टे अवेक लाइक दिस. गाइस आई नो कल शाम के बाद सीधा आज शाम को मिल रही हूँ. क्या लाइफ चल रही है मेरी. मैं गोवा में आके भूल ही गई थी कि मुझे और भी काम होते हैं. आई टू फिनिश अ लॉट ऑफ ब्रांड वर्क इन द मॉर्निंग. आई डिड दैट. अभी बज रहे कुछ 3:30-4 बज रहे हैं एंड आई एम गोना गो टू कार्निवल फाइनली. मैं 4 दिन से सिर्फ सपने देख रही हूँ. मुझे पहले जाना था पेंजिम, मैं पेंजिम नहीं गई. मुझे मड़गांव जाना था, मैं वहां नहीं गई. मैं आज मापसा जाने वाली थी बट माई हैंड एज यू सी इज अंडर सो मच पेन कि आई डोंट थिंक आई कैन ड्राइव सो फार एंड गो. सो फाइनली आई थिंक गॉड इज ब्लेसिंग मी कि मांद्रे में, यहाँ पे आश्रम मांद्रे में भी विवाह कार्निवल होने वाला है. आई हैव नो आइडिया हाउ इट इज गोइंग टू बी, इफ इट्स गोइंग टू बी फन और नॉट. बट अभी अपने पास यही ऑप्शन है एंड आई एम गोइंग फॉर दैट ओनली. आई एम ऑल सेट. अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन हैज बीन लाइक पोतो फाइट. सनस्क्रीन लगा के ना मैं ऐसे चिपचिपी हो गई हूँ यहाँ पे. बट आई एम फीलिंग रियली गुड. इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली प्रोटेक्ट्स योर स्किन. वरना 15 दिन में ना मैं पहचानने के आगे निकल जाती हूँ. मतलब उतनी टैनिंग मुझे हो जाती है. सो लेट्स क्विकली गो. आई एम गोना गिव यू गाइज अ ग्लिम्स ऑफ कार्निवल. आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू कवर इट बट आई एम श्योर यू गाइज आर गोना गेट अ रियली गुड वाइब. सी हाउ क्यूट माय ड्रेस इज लुकिंग टुडे. मेरी बस एक प्रॉब्लम हो गई है. अब ये जो मेरा बैकपैक है ना, ये आई थिंक मुझे एक ही साइड पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ है ना, हाउ डू आई शो यू, इतना भी मतलब इतना करने के लिए मेरी जान जा रही है. आई कांट. तो इसको ऐसे ही लटका के घूमना पड़ेगा. घूमेंगे, ठीक होंगे, फिर वापस पहनेंगे. You know, yesterday Shashank was like, मैं उसको ऐसे वीडियो कॉल पे दिखा रही हूँ कि मुझे इतनी चोट लगी है. And I'm like, I couldn't stop laughing. And he's like, what is wrong with you? How come you're laughing? You're under so much pain. पर अभी क्या करूँ? I don't have any other option. और रोके भी क्या करूँ? I have to do things. I'm already here at Ashram Beach and oh my god, you should look at the setup. I don't know if you can hear me or not, but people are all ready. I'm waiting for the carnival and even I'm waiting for the carnival to happen. You should look at the vibe of this place, guys. I come to Ashram almost every day and the vibe is something else today. They've made this, stands where you can sit and watch the parade, and this parade is gonna happen right here and there's a beach behind it and there's gonna be a beautiful sunset here. There's also some police guards who can will be like maintaining the discipline and everything.
funny things I'm doing in Goa this time. Before I tell you all about my fun night at Carnival, last night, oh my god, I have so much to tell you guys about it. I am here right now in a small clinic. I had to take tetanus का injection. मेरे से actually बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन. परसों मैं गिरी ना, तो उसके बाद मेरे को इतनी जल्दी थी जाने की, तो मैं without like cleaning properly, I just straight away went, and then after 3-4 hours I got back, and then I cleaned the stuff and all, and I'm like, I may get any infection or something, so I thought I'll just take TT का injection safer side. मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार कब लिया था, but मेरी मम्मी को, you guys know my mother is a nurse, तो मेरी मम्मी को जब पता चला तो मुझे तो बहुत तंबी पड़ी है. तो अभी आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले यहाँ पे आई हूँ, एंड सुबह नहीं है, कुछ 12-1 बज रहा है एक्चुअली, बट आई स्लेप्ट रियली लेट आफ्टर द कार्निवल. इट वाज लाइक lit. Now we're doing this. I'm sitting in a Shiva temple right now, which is right next to the Morzai temple जहाँ पे हम लोग आए थे. मैंने सोचा था कि इतनी गिर पिट रही हूँ तो सोचा आ जाती हूँ, you know, बहुत टाइम हो गया, बैठती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान लगाऊंगी तो, and maybe I'll recover fast. But I want to tell you all about last night. Oh my god, Carnival was so much fun. I told you ना I wanted to go to Mapsa, but I couldn't go क्योंकि मेरा हाथ दुख रहा था, तो I didn't want to drive so much. So my friends were like, नहीं इधर आश्रम मांद्रे में भी हो रहा है, वही देख ले. So I went there. I was there for like 3-4 hours, and nothing much was happening. Like it was fun, but not a lot of things were happening the way like I was expecting it, and I was like, थोड़ा मेरा मूड ऐसे हो गया था कि यार एक तो last day I couldn't attend it, now I have to wait entire year. And then finally the parade thing started, and it was so much fun. We had like crazy night, मतलब we danced so much. The Goan music, the Goan people, their vibe, it's something else, dude. ये लोग party करने के लिए बने हैं, मतलब it was something else. The way they represented their culture and their themes, like every place had a different theme, and like a lot of messages were there, a lot of social causes were like, you know, addressed. So it was really fun, and at the same time it had that quirkiness, it had that fun element. So I absolutely loved it. I'm sure you guys like saw the footage and everything, and you must like, you know, you can get the vibe. मतलब if you have never experienced it, no, तो I'll tell you कि ये साल में सिर्फ 4 दिन होता है गोवा में. If you ever get a chance, you should definitely plan your trip around it, because it's a once in a lifetime experience. You should definitely see it. If you're a fan of Goan music and Goan culture and everything about it, you're gonna love it. After that, we just like went out. We had a lovely dinner, and then I got back really late. That is the reason I woke up so not so early. Now I'm sitting here. It's very quiet. It's very मस्त लग रहा है, एकदम हवा लग रही है, ऐसा अच्छा लग रहा है. आज मुझे और भी 1-2 काम है, काम थोड़े फिनिश करूंगी. आज मुझे ऐसे ही सारे काम है. Today I have lot of errands to run, so I'll finish all those काम, and then I'll maybe do some work. I have a lot of edits left. इसमें ना balance करना is so difficult ना, मतलब one day you're having a lot of fun and the next day you have, because I'm living here, right? I'm not doing a lot of touristy stuff. I'm like literally living here, so I have a lot of things I have to take care of, along with like going out and seeing the place. But then that was the whole purpose, and I'm like so far so good. I'm loving it. Now I'm planning to sit here for some more time. थोड़ा सा meditate and all करती हूँ, मुरजाई देवी के भी दर्शन लेती हूँ, and उसके बाद we're gonna continue with our beautiful day. Guys, it's 6:30 in the morning and I had to urgently vacate the hostel because there's been an emergency. कैसे बताऊँ what's an emergency? आप ही देख लो. Guys, अब 2 दिन के लिए ये ट्रिप सोलो ट्रैवल से कपल ट्रैवल बनने वाली है, बिकॉज माई मच बेटर हाफ इज हियर. ओ माई गॉड, इसी खुशी में हमने थोड़ा पैसा खर्च करने का सोचा है. सो आई हैव शिफ्टेड टू दिस न्यू प्रॉपर्टी लाइक राइट बिहाइंड मी. इट लुक्स ब्यूटीफुल, राइट? इट्स अ बंगलो एक्चुअली, बट वी हैव टेकन अ रूम इन इट. दिस इज टर्टल गेस्ट हाउस. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू ऑल. इट्स अ प्रीटी कूल प्रॉपर्टी, एंड हमारा कमरा इधर किधर तो ऊपर है. एंड इफ यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ इट देयर इज अ बीच एक्सेस हियर. फ्रॉम हियर आई विल शो इट टू यू लेटर. एंड यू सी हाउ कूल आई एम लुकिंग टुडे. आई हैव डिसाइडेड टू गो all vibrant. इतनी धूप में मैं तड़कती भड़कती लाल, बिकॉज नाउ नो वी हैव अ वेरी स्पेशल प्लान. आई हैव टेकन अ कार टुडे, क्योंकि हम दोनों घूम रहे हैं, इतनी धूप है, अच्छा नहीं लगता ना इतना प्यारा सा कपल ऐसे स्कूटी पे धक्के मार के गिरे. तो हमने चुपचाप गाड़ी ली है, एंड गाड़ी लेने की खुशी में ना वी आर गोइंग टू अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस टुडे. दैट प्लेस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट एंड आई वांटेड टू विजिट सिंस सो फार. सो अभी मैंने सोचा है कि पहले हम जाएंगे, वी आर गोना हैव सम यमी फूड. वी आर प्लानिंग टू विजिट बाबा औरम व्हिच इज इन मॉर्जिम, नॉट द अंजुना वन, बिकॉज हमें सीधा निकलना है. एंड देन वी आर गोना गो टू दैट प्लेस. आई एम गोना टेल यू more on the way. Let's go.
एंड लुक एट आवर कार. ये स्विफ्ट हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती यार. शैंक्स, तुम जहाँ जाते हो वहाँ स्विफ्ट ही क्यों मिलती रहती है? स्विफ्ट और ये इल्टिका लाल. ये इल्टिका लाल, ये इल्टिका एक्स लाल. नो बट रियली लाइक रियली नाइस कार. अच्छी है, मैनुअल ली है मैंने ताकि मैं भी चला सकूँ. एंड डिसेंट डील मिली है हमको. ऐसे कुछ खास नहीं, 1500 पर डे मतलब है तो में मिल ही जाता है. ऐसी लग्जरी लग रही है ना मुझे सडनली ऐसे गाड़ी में बैठ के. मैं भूल गई थी कि कितना अच्छा फील होता है जब आप गाड़ी में बैठते हो, मुंह पे एसी लगता है. आहा. जब रईस आदमी के साथ रहोगे तो रईसियत से स्पॉन्सर, द स्पॉन्सर इज हियर. तो पैसा उड़ाया जाएगा. पता चला तुम्हारे जाने के बाद मुझे स्कूटी भी देनी पड़ेगी वापस. चल के घूमना पड़ रहा है. बहुत ही शर्मनाक तरीके से हमने 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये फेरी को छोड़ दिया है. 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड. लिटरली हमने गाड़ी यहाँ पे ली एंड यहाँ से फेरी निकल गई. बट हम लोग जाएंगे अगली वाली से. वी आर गोइंग टू दीवार आइलैंड. मैंने आप लोगों को बताया ना, वी आर गोइंग टू अ वेरी स्पेशल प्लेस टुडे. एंड यू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस. मैंने इस बार पहली बार अपनी गोवा के ट्रिप में इस प्लेस के बारे में सुना. एंड द पिक्चर्स आई सॉ एंड एवरीथिंग अबाउट इट, आई वाज लाइक आई हैव टू गो देयर. आई हैव टू सी दिस प्लेस एंड आई थिंक इट्स प्रीटी अनएक्सप्लोर्ड. सो आज का पूरा दिन वी गोना स्पेंड ऑन द आइलैंड. हमें मॉर्जिम से यहाँ पे पहुंचने में 1 घंटा लगा है. अभी यहाँ से हमें फेरी लेके अपनी गाड़ी फेरी में डाल के फिर हम जाएंगे वहाँ पे. आई एम लाइक एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस. आई सेव्ड दिस ट्रिप एंड दिस स्पेशल थिंग बिकॉज आई वांटेड शशांक टू बी हियर एंड गो. वी बोथ आर लाइक व्हाट अ बेबीज. लुक एट द हाउस. I know everything is this entire the road, you know, the moment you get into Panjim and यहाँ पूरा जब साइड में आपको पानी लग जाता है. It is so beautiful guys. मतलब कोई गोवा छोड़ के जाए कैसे टूर, मैं तो नहीं जा सकती. गाड़ी के साथ 10 रुपए टिकट है. गाड़ी कोई टिकट. अच्छा, इंसान को टिकट नहीं है यार. दैट्स सो गुड. अगर आप बिना गाड़ी के हो तो आप फ्री में आ जा सकते हो. गाड़ी के लिए 10 रुपए का टिकट है. लेट्स गो. सी अभी पूरा ये गोल घूम रही है. यू कैन सी गया पीछे. अभी अपन ऐसे ऐसे जाएंगे पीछे. God, I love like you know traveling. सबको पसंद है, but like going to such offbeat places, सुकून. एंड फॉर सम रीजन ना मैं जब यहाँ पे उतरी हूँ ना, मुझे एकदम ऐसे को समोई वाली वाइब आई है. आई नो इट्स बिट हाइप बट स्टिल यार, मतलब को समोई पे जब हम लोग फेरी से उतरे थे ना तो सिमिलर वाइब थी. एंड आई एम लाइक गेटिंग दैट फीलिंग. कब जाएंगे यार थाईलैंड वापस? अभी हमारा आइलैंड पे लिटरली कोई प्लान नहीं है. वी जस्ट गोना रैंडमली एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड सी लाइक व्हाटएवर वी लाइक. वी गोना सिट देयर एंड वी गोना चिल एंड वी गोना एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस. द वाइब ऑफ चॉपमंच व्लॉग्स इन दिस सीरीज इज एब्सॉर्ब द फकिंग एनर्जी ऑफ एवरी प्लेस you go to. पूरे आइलैंड में एक ही रोड है सेंटर से पूरे जाके. एंड आई थिंक ये जो दूसरे एज पे आपको दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है ये दूसरा वो रहेगा. अच्छा, यहाँ से दूसरा फेरी मिलेगा. यही है, बस रोड पकड़ के चलते रहो जिंदगी की तरह.
आइलैंड पे गाइस देयर आर नो पीपल बट व्हाट अ प्लेस यार. एक एक घर मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का सेट है. देयर आर ब्यूटीफुल चर्चेस, देयर आर ब्यूटीफुल होम्स एंड सच अ सीरीन वाइब. मतलब शांति है, एकदम शांति. हम लोग लिटरली घूमते घूमते आइलैंड के कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड आए हैं. यहाँ से इफ यू डोंट वांट टू टेक फेरी फ्रॉम दैट साइड यू कैन टेक फेरी फ्रॉम हियर. सी सच अ स्मॉल आइलैंड इट इज. कितना टाइम हुआ आपने घूमते घूमते? आधा घंटा शायद. आधे घंटे में पूरा आइलैंड घूम लिया हमने. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सी पीपल आर वेटिंग फॉर द फेरी. दीस फेरीज नो कीप कमिंग एंड गोइंग. यू कैन सी डिस्टेंस इतना कम है. वो देखो सिर्फ उधर जाना है, इतना पास में जाना है. ये वाला थोड़ा ज्यादा पास है ऐसा. हाँ उधर वाला थोड़ा और वो है. और वो है वो क्या है और डिस्टेंस है. डिस्टेंस ज्यादा है. On the ferry guys, oh my god, what a beautiful place. Oh, I feel so content, I feel so good. I feel like I've seen something I've never seen before. I've seen many beautiful towns but something like this. यहाँ पे मुझे लगता है जो population होगी ना वो hundreds में होगी, इतनी कम population. But the vibe of the place is so untouched, so quiet. We are right now on the ferry. We are going back to Panjim and इतना beautiful sunset हो रहा है मेरे सामने. I don't feel like going back. But ये जो शाम को जो एक पानी के ऊपर जो vibe होती है ना, this is something else. This is so beautiful. I recommend this place to everybody whoever wants to come here and like enjoy this. I've tried to capture the vibe of this place as much as possible and I'm sure you know you guys may understand कि मतलब it's so beautiful. It's so nice. बैक टू द अर्दी हॉस्टल गाइज, नॉट फॉर लिविंग. मुझे अपना बैग लेना था जो मैंने सुबह यहाँ पे ही रख के गई थी क्योंकि सुबह मैं स्कूटी पे गई ना तो मैं सिर्फ अपने दोनों बैकपैक एंड अपने इक्विपमेंट एंड आज के कपड़े लेके गई थी. अभी आई एम हियर विद शशांक. आई एम गोना टेक दिस बैग इन माय कार. आई कांट बिलीव आई हैव अ कार फॉर 2 days. आई फेल्ट लाइक सच अ लग्जरी टुडे. मतलब नॉट टू लाई गाइज, स्ट्रगल लाइफ गुड बट लग्जरी लाइफ really good. The plan is to take the bags now. Also we're gonna chill now since Shanka is here. We're gonna have a good time. थोड़ा explore करेंगे आजू बाजू. अभी सब कुछ तो नहीं दिखा सकती ना, आप लोगों को समझ जाओ. We're gonna eat something good now. सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है. सुबह हम लोग वहाँ से जो खा के निकले ना, I told you ना, we were so heavy. मुझे तभी लग गया था कि मुझे डूड शाम तक भूख ही नहीं लगने वाली है. And that is what exactly happened. But अभी we are getting थोड़ा hungry and थोड़ा we are thinking कि now we'll have something like really good. Also I have this बत्तीसी वाली smile on my face. There's one more reason behind that my finally first ever Goa series episode is live. I have put my heart and soul into this, sweat and blood into this, and when I talk about blood you guys know what I'm talking about. So I'm like really excited. पहली बार ना मुझे मतलब मैं हमेशा कहती हूँ somebody asks me about my work I'll always be like you know मेरे काम में बहुत ज्यादा job satisfaction है. वीडियो डालते ही मुझे job satisfaction मिल जाता है. So that is the feeling I have right now. I feel really good. I hope you guys are like enjoying this series and whatever opinions you have, you know, if anything that you want to add on to it, do let me know in the comments. I'm like all ears.